ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ನಂತರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ? ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್, ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುರುರಾಜ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುರಾಜ್, ಇನ್ನೇನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಂತ? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅರುಣ್, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಅನ್ನು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅರುಣ್, ಎಸ್ ಗುರುರಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ. ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಮಾತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಶೆಟ್ಟರ್ ಸವದಿ ಪಕ್ಷಾಂತರದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಗಳನ್ನ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Today, Honorable Home Minister of the country and our national leader, Shri Amit Shah ji, is going to address this press meet. On behalf of the Bharatiya Janata Party Hubli Dharwad, I welcome Honorable Home Minister to this press conference. I also welcome you all for this press conference. Initially, he will make initial remarks. After that, few questions he will also take. And I once again welcome you all, and I request Shri Amit Shah ji to kindly start his address. मित्रों, कल से, वैसे तो आज से विड्रॉल का समय समाप्त होने के बाद कल से एक्चुअल चुनाव शुरू होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की हुए में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नए कर्नाटक का नारा लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाम कांग्रेस की रिवर्स गियर सरकार, ये तय करने का कर्नाटक की जनता के लिए चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में
डबल इंजन की सरकार के अब तक 4 साल में जो फायदे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के गरीबों को और कर्नाटक के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को हुआ है, इसके साथ हम चुनाव के मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गैर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने धर्म के आधार पर जो रिजर्वेशन किया था उसको रद्द कर एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में लिंगायत और वोकलिगा समाज के रिजर्वेशन के प्रतिशत में वृद्धि कर बहुत समय के बाद सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप सभी जानते हैं, धार्मिक आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है, परंतु वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाया था। कांग्रेस के लिए कर्नाटक जन कल्याण का मुद्दा नहीं है, कर्नाटक के विकास का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस कर्नाटक में अपने एटीएम को ढूंढ रही है और दूसरी ओर जेडीएस भी एक परिवारवादी पार्टी है जो हमेशा चुनाव तो कांग्रेस के सामने लड़ती है, परंतु चुनाव होने के बाद सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ बैठती है। इसलिए मैं कर्नाटक की जनता को आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक का सर्वांगीण विकास करेगी और कर्नाटक में से गरीबी का 100% उन्मूलन करेगी। सुरक्षित कर्नाटक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया, 92 उनके मेन कैडर के लोगों को अरेस्ट किया गया। एनआईए आज आतंकवाद से जुड़े हुए 24 मामलों की जांच कर रही है और एक मजबूत शिकंजा देश विरोधी ताकतों पर कसने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप सभी को मालूम है, कांग्रेस की सरकार थी तब पीएफआई के कैडर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण पीएफआई को काम करने की खुली छूट दी गई थी। हमने इस पर संपूर्ण लगाम कसने का काम किया है। आज मैं कित्तूर कर्नाटक में हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कित्तूर कर्नाटक का अपमान किया है। एक समय में केंद्र में यूपीए की सरकार थी, गोवा और कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार थी, मगर कभी भी महादायी विवाद को समाधान की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। 1980 में महादायी पानी का मांग करते हुए किसानों पर नवलगुंड में गोली भी कांग्रेस सरकार ने चलाई थी। यह हमारी सरकार है जिसने सभी को साथ रखते हुए, सभी को न्याय देते हुए हमने मुद्दे का समाधान कराने का प्रयास किया था। ऊपरी भद्रा परियोजना 5,300 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने मंजूर की है। अपर कृष्णा 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दिया है। कलसा बंडूरी 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा
हमने अनुदान दिया है और कर्नाटक के कुल 7 शहरों को स्मार्ट सिटी के तहत चुना गया, जिसमें बेंगलुरु, बेलगावी, दावणगिरी, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, शिवमोगा और तुमकुर है। हुबली और धारवाड़ दोनों कित्तूर कर्नाटक के महत्वपूर्ण शहर है, जिसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए के 62 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने केरूर लिफ्ट सिंचाई परियोजना भी आगे बढ़ाई है। इसके साथ साथ कित्तूर कर्नाटक में बेलगावी कित्तूर धारवाड़ रेलवे परियोजना 150 करोड़ की लागत से, बागलकोट कुदाची रेलवे परियोजना 210 करोड़ की लागत से, खज्जी धोनी लोकापुर रेलवे परियोजना 140 करोड़ की लागत से, गड़ग एलवीगी रेलवे लाइन 600 करोड़ की लागत से हमने आगे बढ़ाई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेलगावी में किडवई क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को 130 करोड़ रुपया दिया है और हावेरी में एक नया मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। सीगांव में टेक्सटाइल पाइप की आधारशिला रखी गई है। न केवल इससे रुई के किसानों को फायदा होगा, 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी भी मिलेगी। हावेरी में एक मेगा डेयरी 1 लाख लीटर के उत्पादन की क्षमता के साथ करा है और गन्ना किसानों के लिए कांग्रेस के समय में 2100 रुपया प्रति टन एफआरपी दी जाती थी, आज 3150 रुपया एफआरपी दी जाती है। ये बहुत बड़ा गन्ना किसानों के लिए फायदा है। 33 कंपनियों ने धारवाड़ और अन्य जिलों में 10,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले कारखाने लगाए हैं। विजयपुरा में एक हवाई अड्डा का निर्माण भी हो रहा है। रायचूर कलबुर्गी 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को 2300 करोड़ रुपए की ग्रांट से बनाया जा सके। समग्र कर्नाटक की बात करें तो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार थी तब 2009 से 14 में 94,000 करोड़ रुपया 94,224 करोड़ रुपया टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का मिलता था कर्नाटक को। मोदी जी की सरकार बनने के बाद 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014 से 19 के 5 साल में 2,26,418 करोड़ रुपया हमने देने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। 140% की ग्रांट की वृद्धि हुई है। उसी तरह से टैक्स डेवल्यूशन और ग्रांटेड एड का योग करें तो 22,000 करोड़ मिलता था, इसकी जगह 3 गुना कर 75,220 करोड़ रुपया कर्नाटक को मिलता है। हमने बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट भी करे हैं। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 10 लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस 8,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेस 17,000 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट, बीदर कलबुर्गी बेल्लारी 7,600 करोड़ की लागत से, पहली दक्षिण भारत की वंदे भारत ट्रेन मैसूर चेन्नई मोदी जी ने लोकार्पण किया है। शिवमोगा और कलबुर्गी में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। हसन, विजयपुरा, कोल्हार और रायचूर में हवाई अड्डों का निर्माण शुरू हो चुका है। 7 मॉडल विश्वविद्यालय चामराजनगर, बीदर, हावेरी, हासन, कोडागु, कोप्पल और बागलकोट के अंदर हमने शुरू किया है और रायचूर और धारवाड़ में 2 ट्रिपल आईटी भी शुरू किए हैं। हमने मैसूर में एक टेक क्लस्टर बनाया है, मैसूर में फिनटेक क्लस्टर भी बनाया है,
कर्नाटक में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एमओयू किया गया है। 9 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं और पिछले 4 साल में हमने 55 लाख रोजगारी का सृजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गरीब कल्याण की मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,10,000 घर गरीबों को दे चुके हैं। जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया है। लगभग 48 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा हमने दी है। 4 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और 54 लाख किसानों को 15,000 करोड़ रुपया हर साल 10,000 रुपये का हम चेक इनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देते हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 1.38 करोड़ लाभार्थी हैं और 37 लाख कनेक्शन उज्ज्वला के गैस योजना के भी हम दे चुके हैं। मित्रों, एक और सत्ता के लिए आंतरिक मतभेदों के साथ जनता के सामने आई हुई कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कर्नाटक की सुरक्षा को ताक पर रखने वाली कांग्रेस और दूसरी ओर सुरक्षित कर्नाटक, नया कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता के नारे के साथ मोदी जी के नेतृत्व में मैदान में उतरी हुई भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे तो विश्वास है, मैं 14 दिन चुनाव के पहले गुजार चुका हूं कर्नाटक में। कर्नाटक की जनता पलक पावड़े बिछाकर भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रही है। मुझे विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मेरी कर्नाटक की जनता से करबद्ध निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करिए और एक पूर्ण बहुमत की सरकार के माध्यम से सुरक्षित कर्नाटक, विकसित कर्नाटक और राजनीतिक स्थिरता वाला कर्नाटक हम आपको देंगे। ये हमारा वादा है। मोदी जी ने कर्नाटक के विकास के लिए कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है। अगले 5 साल भी डबल इंजन सरकार ही कर्नाटक का भला कर सकती है, ये हमारा वादा है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रहलाद जी ने कहा है कि कुछ सवाल, मगर आप आराम से पूछिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा, मैं सबके जवाब दूंगा। धन्यवाद। आप बोल रहे थे कि खजीरोनी, लोकापुर और बागलकोट कुर्ची अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन खजीरोनी लोकापुर इट्स पार्ट ऑफ बागलकोट कुर्ची प्रोजेक्ट इटसेल्फ। नहीं, ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिए। अलग अलग बोल रहे थे, नहीं, करेक्ट कर लीजिए ना। सर आपने बोला कि ये रिजर्वेशन टूबी का निकाला था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई बाकी है। मैं कर्नाटक, सुन लीजिए, अब मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का जो भी फॉर्मूला मुंबई सरकार ने करा है, हम उसको जमीन पर उतारेंगे। सब कैटेगरी रिजर्वेशन के साथ जो दलितों के लिए भी किया है, उसको भी हम जमीन पर उतारने का काम करेंगे। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है और वो कभी भी संविधान में इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन 50% ज्यादा हुआ ना। मैं कह रहा हूं, एक कोर्ट के अंदर चैलेंज हुआ है। आप कोर्ट के फैसले की राह देखिए। मगर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम फिर से मुस्लिम रिजर्वेशन को लाएंगे। तो मैं आज बड़ी विनम्रता से कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आप किसका कम कर लाओगे? किसका कम करोगे? वो कलिगा का कम करोगे, लिंगायत का कम करोगे, दलित का कम करोगे या एसटी का कम करोगे?
उसके लिए उनका इसके लिए बड़ी स्पष्टता के साथ कांग्रेस सरकार ने अपनी बात को रखनी चाहिए कि 4% हम मुसलमानों को देंगे धार्मिक रिजर्वेशन धर्म के आधार पर, वो किसका कम करोगे। जो मुस्लिम समाज की कैटेगरी ओबीसी में है वो सबको आज भी रिजर्वेशन हम देने के लिए तैयार हैं, दे रहे हैं, परंतु धर्म के आधार पर किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ये संविधान की मूल स्पिरिट है। ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಿಂಗಾಯತರ ಒಂದು ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ। नयापन लाने के लिए आपने नया फेसेस को लाया है, लेकिन लिंगायत के समाज में है कि लिंगायत लीडर्स को लिंगायत समाज के खिलाफ आप कर रहे हैं और लिंगायत लीडर को आप दबा रहे हैं। देखिए, जहां तक आपने लिंगायत का सवाल किया है, एक भी जगह पे लिंगायत को बदलकर नॉन लिंगायत को टिकट नहीं दिया गया है, लिंगायत ही लड़ रहे हैं। और सवाल मैं कांग्रेस को भी पूछना चाहता हूं, हमारे यहां से कुछ 1-2 नेता गए तो उनके मुंह में पानी छूट रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी ने लिंगायतों के लिए क्या किया? इतने इतिहास में 2 ही मुख्यमंत्री बनाए, दोनों को अपमानित कर निकाल दिया। एक को श्रीमती इंदिरा गांधी ने निकाला और दूसरे को एयरपोर्ट पर अपमानित कर, मैं पाटिल साहब की बात कर रहा हूं, उनको राजीव गांधी ने निकाला। कांग्रेस को तो ये बोलने का अधिकार ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी जातियों का सम्मान करने का और समाहित कर सबको साथ रखने का प्रयास किया है। सर, क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर, आपने पीएफआई के बारे में बात किया था और एसडीपीआई जो है, हम देखते आ रहे हैं कि पीएफआई और एसडीपीआई एक पॉलिटिकल आर्म जैसी है, और यहाँ पर कैंपेन कमेटी चीफ एमबी पाटिल ने भी ये कहा था और फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जी परमेश्वर जो है उन्होंने भी ये बताया था कि कांग्रेस चाहती है कि एसडीपीआई उनको सपोर्ट करे, लेकिन बार बार ये दोहराया जा रहा है कि एसडीपीआई और पीएफआई एक ही ऑर्गेनाइजेशन जैसी है और यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले पीएफआई का भी समर्थन लेती थी, अब पीएफआई पर बैन लग गया। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो मैदान में है चुनाव के, कांग्रेस इसका समर्थन मांग रही है, इसमें हमें तो कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इनके लिए सुरक्षित कर्नाटक महत्व का मुद्दा नहीं है, चुनाव जीतना महत्व का मुद्दा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार की ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, इतना ही हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह सकते हैं। सर, you mentioned about Parivarwad of JDS. Could you please elaborate more on it? Because you said you oppose Parivarwad, but what we see in the list announced by BJP. देवगौड़ा जी के बाद पार्टी के नेता, पार्टी के अध्यक्ष कुमार स्वामी जी बने। हमारे यहाँ अध्यक्ष भी बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बदल रहते हैं, मुख्य परिवारवाद के आधार पर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कभी तय नहीं होते हैं, बहुत फर्क है। और जेडीएस के परिवार में कोई एक तो बताओ जो चुनाव न लड़ता हो, शायद एकादा कोई बचा होगा। Sir, what we understand from Parivarwad is that you don't give ticket to the son, the mother, brother or daughter-in-law or son-in-law. नहीं, मगर उनको हमने पार्टी नहीं सौंप दी है, पार्टी अलग हाथों में, आप भी समझ रहे हो, मगर मैं आपसे बहस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुख्य व्यवस्था में परिवारवाद के खिलाफ है। कई जगह पे हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार के लोग लड़ते ही डजन मीन के हम परिवारवाद करते हैं। पार्टी के अध्यक्ष भी अलग हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी अलग हैं। So giving ticket to a son, हम बहस नहीं कर सकते भैया, आप सवाल पूछ सकते हो, बहस नहीं कर सकते हो। Sir, I'm just asking you a clarification. मैंने दे दिया ना। Sir, with regard to Mahadai. आप क्या बताती हैं? सर, एक प्रश्न है, किसानों की बात की, बीजेपी जिस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, आपने बताया भी कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी आज शुगर के किसानों से मिले थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा
कि बीजेपी सिर्फ 2-3 परिवार के लिए ही काम कर रही है, बड़े लोगों के लिए। किसान मजदूर का इनसाइट आज मुझे पता चला है और सभी लोग प्रतिबद्ध है कि वो हमारे साथ आएंगे। इस पर आपका क्या उत्तर है? देखिए, 54 लाख किसानों को हम हर साल 10,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनके अकाउंट में ट्रांसफर करें। अगर राहुल गांधी इससे डिस्प्यूट करे तो हम इसका जवाब दें। अगर राहुल गांधी जी ये समझते हैं कि 54 लाख किसान 2-3 परिवार के हैं, तो अब आपको राहुल जी को सवाल पूछना चाहिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर, जगदीश शेट्टर और होगिरोದು बीजेपी ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? जगदीश शेट्टर के एग्जिट के कारण कितना लॉस सर, वो होगा? रीजन भी पूछ रहे थे। कोई लॉस नहीं होना है। जगदीश शेट्टर स्वयं चुनाव हारेंगे। हुबरी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हुबरी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुश्त है, एक झूठ है, और हुबरी के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। सर, वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी को, मोदी जी को ये पता नहीं है कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। जो बीच में जो लोग हैं वो उन्होंने ठीक तरह से हाईकमांड को नहीं बताया कि जगदीश शेट्टर को क्यों निकाला जा रहा है। नहीं, बहुत सारे लोगों को निकाला गया है, अकेले शेट्टर जी को नहीं निकाला गया है। सर, रीजन क्या है? He was asking reason, sir. Why he was denied ticket? रीजन इनको बता दिया गया है। सर, दिस इज द सेकंड इलेक्शन सर, ये दूसरा इलेक्शन है जहां माइनॉरिटीज को किसी को भी बीजेपी ने नहीं ट्रीट किया। नहीं, हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए हैं। हम मेजोरिटी माइनॉरिटी को कंसेप्ट को नहीं मानते हैं। हमने मेरिट्स और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट दिए। सर, just day before yesterday, Mr. Siddaramaiah gave a statement about Lingayats and Lingayat chief ministers. Do you think that has changed the equation for the BJP in this election? नहीं, मैं मानता हूं कि समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उन्होंने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि कांग्रेस किस तरह से लिंगायत समुदाय का विरोध करती है, अपमान भी करती है। सर, खुद जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी कह रहे हैं कि सीनियर लिंगायत लीडर को बीजेपी में अवमान हो रहा है। और उसके सपोर्ट में सर, कर्नाटक में बीएल संतोष और उनके साथ 3-4 लोगों के कपी मुष्टि में पार्टी है बोल के भी उन्होंने आरोप लगाया। अब तक किसकी मुष्टि में थी जब तक वो डेप्यूटी सीएम बने थे? अभी याद आया? यही मुष्टि में थी। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क में मानती है, किसी की मुष्टि में पार्टी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री ही लिंगायत समुदाय से। क्या बात कर रहे हैं लोग? सर, हमने देखा है कि कर्नाटका में जो भी पार्टी जीतती है वो ओल्ड मैसूरू रीजन को भी जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी इधर पेनिट्रेट करने में टिल नाउ दे हैव नॉट बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर ने एक कैंपेन किया था और आप भी बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजी है ओल्ड मैसूरू रीजन की? नहीं, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं भाई। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ओल्ड मैसूर क्षेत्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। हम हमारा विचार लेकर जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ओल्ड मैसूर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिलेगी। शेट्टर सर ने बोला था कि कर्नाटक का बीजेपी आज बीएल संतोष के हाथ में है। जो मैंने जवाब दे दिया भैया, शायद आप कहीं और सोच में थे। Sir, you mentioned about Mahadai. Well, last time Prime Minister had come here, he said he would solve the issue and the work will start. And now, even after all these years, the concern about the sides, BJP-led governments are there, and Goa is still objecting to the project. मैंने जो ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.